हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 10th का आपका जो चैप्टर चल रहा था भोली, उसका सेकंड पार्ट। आई होप कि फर्स्ट पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो और आपने उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ा हो अच्छे से। तो आज हम सेकंड चैप्टर रीड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand. As she looked at the pictures on the wall, the colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which Tehsildar had come to visit their village. The goat was black, like the goat of their neighbor. The parrot was green, like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi, and suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her. What's your name, little one? Bha, bho, bho. She could stammer no further than that. Then she began to cry, and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who, she knew, were still laughing at her. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, he kept on sobbing. Bholi, the teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. Bholi got up. Now tell me your name. A sweat broke out over her whole body. Would her stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman? However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. Bha, bha, bho, bho, she began to stammer. Well done, the teacher encouraged her. Come on, now the full name. Bha, bha, bho, bholi. At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Well done, the teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. Bholi looked up as if to ask, really? Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? Bholi nodded. No, say it aloud. Yes, and Bholi herself was astonished that she had been able to say it. Didn't I tell you? No, then take this book. The book was full of nice pictures, and the pictures were in color: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in big black letters. In 1 month, you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book. तो हमने इतना रीड कर लिया है। पहले अब हम इसे हिंदी के साथ रीड करते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे का रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोली भोली डिड नॉट नो, नहीं जानती। नो मिस होता है जानना। भोली डिड नॉट नो, भोली नहीं जानती थी। वाट एग्जैक्टली, कि क्या बिल्कुल निश्चित रूप से स्कूल एक स्कूल वाज लाइक होता है। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल कैसा होता है। एंड वाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। मतलब भोली डिड नॉट नो वाट एग्जैक्टली ए स्कूल वाज लाइक। भोली
नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में कैसा था एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वह खुश थी। ग्लैड होना मतलब खुश होना, लेकिन वह खुश थी टू फाइंड पाकर सो मैनी गर्ल्स, कई लड़कियों को ऑलमोस्ट ऑफ हर एज ओन एज, अपने खुद की उम्र की, प्रेजेंट देयर वहाँ उपस्थित। लेकिन वह इस बात से बहुत खुश थी कि उसने अपने ही उम्र की कई लड़कियों को वहाँ पर पा लिया था। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। शी होप, उसे आशा थी, दैट कि वन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से एक, माइट बिकम हर फ्रेंड, ज़रूर ही उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर, अध्यापिका ने, हु वाज इन द क्लास, जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग, वह कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों से, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, बट लेकिन भोली कुड अंडरस्टैंड, नहीं समझ पा रही थी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन भोली कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर, शी मिस वह लुक्ड मतलब देख रही थी, एट द पिक्चर तस्वीरों पर, ऑन द वाल जो दीवार पर लगी हुई थी, वह दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, द कलर्स मतलब रंग, फैसिनेटेड मतलब अच्छे लग रहे थे, हर मिस उसे, मतलब जो जो रंग थे उसके उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा भूरा था, जस्ट लाइक द हॉर्स, बिल्कुल उसी घोड़े की तरह, ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, ऑन विच जिस पर तहसीलदार हैड कम आए थे, टू विजिट दौरे पर, देयर विलेज हमारे गांव के। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक, घोड़ा भूरा था, बिल्कुल उसी घोड़े की तरह जिस पर तहसीलदार साहब गांव के दौरे करने आए थे। द गोट वाज ब्लैक, बकरी काली थी, लाइक तरह, द गोट ऑफ देयर नेबर्स, उसके पड़ोसियों की बकरियों की तरह, बकरी उसके पड़ोसियों की बकरी की तरह बिल्कुल काली थी। द पैरट्स वाज ग्रीन, तोते हरे थे, लाइक द पैरट्स, उन तोतों की तरह, शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जो उसने आम के वृक्षों पर देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, एंड द काउ और गाय, जस्ट लाइक बिल्कुल, देयर लक्ष्मी उसकी लक्ष्मी की तरह थी, और गाय बिल्कुल उसकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली, और अचानक, भोली नोटिस, भोली ने ध्यान दिया, दैट की द टीचर अध्यापक वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड, की वह उसके बिल्कुल पास खड़े हैं, स्माइलिंग एट हर, और उस पर उसकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, लिटिल वन, छोटी लड़की, भा भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, शी कुड स्टैमर वह हकलाई, नो फर्दर देन दैट, और उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई, और तब वह रोने लगी, एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लोड, हेल्पलेस मतलब असहाय होकर, फ्लोड मतलब बाढ़ की तरह उसके आँखों से आंसू बहने लगे, मतलब एक असहाय बाढ़ की तरह उसके आँखों से आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड, उसने केप्ट हर हेड, अपने सर को डाउन झुका लिया, एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और वह अपने कोने में जाकर बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, उसने उसे हिम्मत नहीं की, टू लुक अप ऊपर देखने का, एट द गर्ल्स हु, उन लड़कियों का, शी न्यू वह जानती थी, वह स्टिंग लाफिंग एट हर, की वह अभी भी उस पर हंस रही हैं, मतलब उसने उन लड़कियों को ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, जिसे वह जानती थी कि वह अभी भी उस पर हंस रही हैं। जब उसने हकलाया तो सारी लड़कियां क्लास की हंसने लगी। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out, सभी लड़कियां तेजी से आउट बाहर आईं, ऑफ द क्लासरूम कक्षा के, बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली dared उसने साहस नहीं किया, not leave नहीं छोड़ा, हर कॉर्नर अपने
कोने को, लेकिन भोली ने अपने कोने को छोड़ने का साहस नहीं किया। हर हेड स्टिल लोअर्ड, उसका सर अभी भी झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, और वह अभी भी सिसक रही थी। भोली भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट। टीचर्स वॉइस, अध्यापिका की आवाज़ वाज थी सो सॉफ्ट, बहुत कोमल एंड सूथिंग और लुभाने वाली, यह बहुत अच्छी थी। इन ऑल हर लाइफ, उसने अपने पूरे जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड, उसे नहीं पुकारा गया था लाइक दैट, इस तरीके से। उसके पूरे जीवन में उसे इस तरीके से कभी भी नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसे इस चीज़ ने उसके हृदय को छू लिया था। टच करना मतलब छू लेना, हर हार्ट मतलब उसके हृदय को। अध्यापिका ने इतने प्यार से उसे बोला तो उस चीज़ ने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप, उठ जाओ, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये एक आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बट लेकिन जस्ट ए फ्रेंडली, एक मित्रतापूर्ण सलाह थी। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम अपना नाम बताओ, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट ब्रोक आउट, स्वीट ब्रोक आउट मतलब पसीना बहने लगा। आउट हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से, उसके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। वे या उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, वुड क्या, हर स्टैमरिंग हकलाती हुई जबान, टंग मीन्स जबान, अगेन मीन्स दोबारा, डिस्ग्रेस करना मतलब लज्जित कराएंगी, हर मीन्स उसे। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती हुई जबान उसे दोबारा लज्जित कराएंगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड, इस दयालु औरत के लिए, हाउएवर कैसे भी करके, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू मेक एन एफर्ट, कि वह एक प्रयास करेगी। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पर नहीं हंसेगी। भा भा भो भो, शी बिगेन टू स्टेमर, वह दोबारा हकलाने लगी। वेल डन, बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर इनकरेज्ड हर, अध्यापिका ने उसके प्रोत्साहित किया उसे। कम ऑन, आओ, नाउ अब, द फुल नेम, अपना पूरा नाम बताओ। भा भा भो भोली। एट लास्ट, अंत में, शी वॉज एबल, वह योग्य रही, टू से कहने के, इट इसे, अंत में वह इसे कहने के योग्य हो रही। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और अब उसे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने एक महान उपलब्धि प्राप्त की हो, क्योंकि उसने लास्ट में अपना पूरा नाम बोल दिया, बता दिया। वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अध्यापिका ने थपथपाया। पैटेड करना मतलब थपथपाना, हर उसे, अध्यापिका ने उसे थपथपाया अफेक्शनेटली, प्यार से। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, पुट द फियर, डर को, आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हृदय से बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल, तब तुम योग्य होगी, टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, प्रत्येक लोगों की तरह बोलने के। तुम अपने हृदय से डर को बाहर निकाल दो और तब तुम सभी की तरह बोलने के योग्य होगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने ऊपर देखा। एज, जैसा कि, इफ इट टू आस्क, वह पूछना चाह रही थी, रियली, क्या वास्तव में ऐसा। यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें प्रत्येक दिन स्कूल आना होगा। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, भोली ने, नॉडेड करना मतलब सर को हिलाना। भोली नॉडेड, भोली ने अपने सर को हिलाते हुए कहा। नो नहीं, यस इट अलाउड, उसने इसे तेज से कहा। यस यस, हाँ हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिड, और भोली हरसेल्फ खुद से भी, वाज एस्टोनिड, आश्चर्यचकित थी। विद दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वह अब कहने के योग्य है, कि मतलब अब अपनी बातों को वो कह सकती है। डिड नॉट टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। नाउ टेक दिस बुक, अब इस किताब को ले लो। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, एंड पिक्चर्स वर इन कलर। द बुक, ये किताब, वाज फुल, भरी हुई है, ऑफ नाइस पिक्चर, सुंदर तस्वीरों से। एंड द पिक्चर्स, और तस्वीरें, वर इन कलर, रंगों में हैं।
डॉग, कैट, बिल्ली, कुत्ते की, बिल्ली की, बकरी की, हॉर्स घोड़े की, पैरेट तोते की, टाइगर चीते की, एंड ए काऊ और एक गाय की है, जस्ट लाइक लक्ष्मी, बिल्कुल लक्ष्मी की तरह। एंड विथ एवरी पिक्चर और प्रत्येक तस्वीर वाज थी ए वर्ड, एक शब्द, और प्रत्येक तस्वीर का एक शब्द इन बिग ब्लैक लेटर, एक बड़े काले अक्षर में है। इन 1 मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल, तुम योग्य होगी, टू रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के। एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने के योग्य होगी। देन तब आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, ए बिगर बुक, एक बड़ी किताब। देन तब ए स्टिल बिगर वन, उससे भी बड़ी एक। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनी वन इज इन द विलेज। इन टाइम, एक समय में, यू विल बी मोर लर्नड, तुम बहुत विद्वान या तुम अधिक सीख लोगी, देन उतना, एनी वन इज इन द विलेज, जितना कि तुम्हारे गांव के एक व्यक्ति या तुम्हारे गांव के किसी व्यक्ति ने सीखा होगा। देन तब, नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कभी भी कोई एक तुम पे हंसने के योग्य नहीं होगा। पीपुल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हें सुनेंगे, विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विथआउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, एंड यू विल बी एबल, और तुम योग्य होगी, टू स्पीक, बोलने के, विथआउट, बिना, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी हकला कर, तब तुम थोड़ा सा भी हकला के बोलने के भी योग्य होगी, मतलब ज़रा सा भी नहीं हकलाओगी तब तुम पूरा बोलने के योग्य होगी। बिगना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तब तुम बोलने के योग्य होगी, विथआउट, बिना, स्लाइटेस्ट स्टेमर, थोड़ा भी हकलाए, बिना हकलाए तब तुम बोलने के योग्य होगी। अंडरस्टैंड, समझ गई। नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक, और वापस आना, अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी। भोली फेल्ट एज इफ भोली को महसूस हुआ, एज जैसा कि, सडनली, अचानक, आल द बेल्स, सभी घंटियां, इन द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की, वह रिंगिंग, बजने लगी हूँ। भोली को ऐसा महसूस हुआ कि अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही हों। एंड द ट्रीज, और पेड़, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, स्कूल के भवन के सामने का पेड़, had blossomed into big red flowers, flower मतलब फूल, red मतलब लाल, big मतलब बड़े, into blossom करना मतलब खिल गए हों, और स्कूल भवन के सामने का वृक्ष में लाल बड़े फूल खिल गए हों। हर हार्ट वाज थ्रोविंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ, हर हार्ट, उसका हृदय, वाज था, थ्रोविंग मतलब धड़कने लगा, विथ ए न्यू, एक नई, होप, आशा के साथ, एंड ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ, उसका हृदय एक नई आशा और एक नए जीवन के साथ धड़कने लगा। दस द ईयर पास, जैसे जैसे जिस प्रकार साल बीतते गए, द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, छोटा प्राइमरी स्कूल बड़ा हाई स्कूल, कक्षा 10 तक हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, देयर वर वहाँ था, नाउ अब, एक सिनेमा घर था, अंडर ए टीन शेड के नीचे, अब वहाँ एक छोटा सा सिनेमा घर था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल्स, और वहाँ पर कॉटन के कपड़े, मतलब कॉटन मतलब होता है सूती, गिनिंग करना मतलब अलग करने वाली मशीन का कारखाना भी था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन मतलब मालगाड़ी, बिगेन शुरू हो गई, टू स्टॉप रुकना, एट देयर मतलब उनके, रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर, मालगाड़ी अब उनके रेलवे स्टेशन पर भी रुकना शुरू हो गई। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन तब, शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, शैल क्या, आई एक्सेप्ट मैं स्वीकार कर लूँ, बिशंबर का, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव,
क्या मैं दिसंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी, भोली सौभाग्यशाली होगी। टू गेट कि मिलेगा सच वास्तव में ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, उसे एक अच्छा दूल्हा। भोली बहुत सौभाग्यशाली होगी कि उसे वास्तव में एक अच्छा दूल्हा मिलेगा। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, और खुद का उसका घर है। एंड आई हियर्ड, और मैंने सुना है। सेवरल थाउजेंड, की हज़ारों, कई हज़ार। इन बैंक, उसके बैंक में भी जमा है। मोर इवर, इससे भी अधिक। ही डिड नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, और इससे भी अच्छी बात यह है कि ही इज़ नॉट आस्किंग, कि वह नहीं मांग रहा है, फॉर एनी डॉरी, कोई दहेज। और इससे अच्छी बात है कि वह कोई भी दहेज नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, ये बिल्कुल सही है। बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन वह युवा नहीं है, मतलब वह जवान नहीं है। यू नो, तुम जैसा जानती हो। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वह बिल्कुल लगभग मेरे ही उम्र का है। एंड ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा भी है। लिम्स होना मतलब लंगड़ा, और आल्सो मतलब भी। एंड ही आल्सो लिम्स, और वह लंगड़ा भी है। मोर इवर, इससे ज़्यादा। द चिल्ड्रेन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वर क्वाइट ग्रोन अप, और इससे भी ज़्यादा ये है कि द चिल्ड्रेन, बच्चे, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसके पहली पत्नी के बच्चे, आर क्वाइट ग्रोन अप, बड़े भी हो गए हैं। ग्रोन अप होना मतलब बड़े हो जाना। मतलब एक ऐसे लड़के से शादी करवाना चाहती है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, उसके पिता के उम्र का है, और उसकी शादी एक हो चुकी है, पैर से लंगड़ा है, और उसके बच्चे भी हैं। क्या ऐसा आप लोगों के साथ होता? क्या आप लोग एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ें, या आपके घर वाले? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कभी भी ऐसा कभी किसी के साथ हो तो हमेशा इसे इनकार करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें नहीं ज़रूरी होती हैं। जो लाइफ पार्टनर होता है, जो लोग जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है, वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50, 45 साल अथवा 50 साल। इट इज़ नॉट ग्रेट एज, ये ज़्यादा उम्र नहीं होती। फॉर ए मैन, एक पुरुष के लिए। मतलब 45 साल अथवा 50 साल, ये मनुष्यों मतलब आदमियों के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। वी आर लकी, हम सौभाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वह एक दूसरे गांव से है। एंड फ्रॉम डज नॉट नो, और वह नहीं जानता। अबाउट हर, उसके बारे में, मतलब वह हमारी बेटी के बारे में नहीं जानता। पॉक्स मार्क, उसके चेचक के निशानों के बारे में। एंड हर लेक ऑफ द सेंस, और उसके दिमाग की कमी के बारे में। मतलब हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव से है, और वो हमारी बेटी के मतलब चेचक के निशानों के बारे में और उसके दिमाग की कमी के बारे में नहीं जानता। अब इनको बड़ी खुशी हो रही है कि वो इस बारे में नहीं जानता। वो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो अपना रिश्ता हमारे घर कर रहा है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यदि वी डोंट एक्सेप्ट, यदि हम इसे स्वीकार न करें, दिस प्रपोजल, इस प्रस्ताव को। शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, शी में रिमेन, बनी रहेगी। अनमैरिड, पूरे जीवन। आल मतलब सभी, अनमैरिड मतलब अविवाहित रहेगी। ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार न करें, शी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वह अपने पूरे जीवन अविवाहित रहेगी। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मुझे हैरानी है। व्हाट भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, व्हाट, क्या, विल दैट, वह, विटलेस मतलब मूर्ख या तो पागल सी लड़की क्या कह सकती है। शी इज़ लाइक ए डम काउ, शी मिस, वह इज मिस है। लाइक मतलब तरह, ए डम मतलब एक गूंगी, और काउ मिस क्या होती है, गाय। शी इज़ लाइक ए डम काउ, ये वह एक गूंगी गाय की तरह है। वह क्या कह सकती है।
तो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छा लग रहा हो और आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो आगे पढ़ने का स्टोरी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। फ़िलहाल के लिए ऐसे अच्छे से लर्न करिए और रीड करिए, देखिए कि आगे आपको क्या क्या पता चला किस चीज़ों के बारे में। तो ऐसा आपके साथ कभी होता है या आपके घर में या आपके पड़ोस में ऐसा होता है तो आप हमेशा इनकार ही करिए चीज़ों से, कभी इसको एक्सेप्ट ना करिए, ठीक है, ऐसी चीज़ें अगर होती हैं। चलिए रखते हैं, वीडियो क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।